अस्सलाम वालेकुम आदाब। वन टीवी के उर्दू खबरनामे में आप सबों का खैर मकदम है। मैं शहबाज। आगे बढ़ने से पहले देखेंगे हेडलाइंस। वजीर आला रेवंत रेड्डी का बयान, बीआरएस के सोशल मीडिया कारकुनों को जेल जाने का खतरा। रियासती वजीर सीता अक्का का मोदी की तकरीर पर शदीद रद्द अमल, मन घड़त इल्जामात और किसानों की मुश्किलात। दिल्ली के वजीर आला आतिशी का बीजेपी पर गरीब मुखालिफ होने का इल्जाम। लखनऊ में किसान और मजदूरों की महापंचायत, राकेश टिकैत ने बीजेपी को निशाना बनाया। भूपिंदर हुड्डा का एग्जिट पोल पर रद्द अमल, कांग्रेस भारी अक्सरियत से हुकूमत बनाने जा रही है। बेरशिवा में फायरिंग, एक इजरायली हलाक, 10 जख्मी। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने खबरदार किया है कि बीआरएस सोशल मीडिया के जरिए इख्तिदार में आने की कोशिश कर रही है, मगर इसके नतीजे में कारकुनों को जेल भी हो सकता है। इस बयान ने बीआरएस के अंदर तशवीश की लहर दौड़ा दी है, खासतौर पर हालिया गिरफ्तारियों के बाद। राजशेखर, जो सोशल मीडिया पर कैप्टन फैसिक के नाम से जाने जाते हैं, की गिरफ्तारी ने बीआरएस के कारकुनों में खौफ व हरास पैदा कर दिया है। सोशल मीडिया कन्वीनर माना कृष्ण ने इस सूरत हाल पर कहा है कि कांग्रेस हुकूमत दशहरा के तातीलात का फायदा उठाते हुए बीआरएस के सोशल मीडिया कारकुनों को निशाना बनाने की कोशिश कर रही है। ఈ రోజు మన మీద దుమ్మెత్తిపోయాలని అధికారం కోల్పోయినోళ్ళు విచక్షణారహితంగా ఎట్లా పడితే అట్లా మాట్లాడి సోషల్ మీడియాతోనే అధికారంలోకి వస్తాం అనుకుంటారు. సోషల్ మీడియాతోనే అధికారంకు రారు, కానీ చెర్లపల్లికి అయితే పోతారు. నేను గ్యారెంటీగా చెప్తున్నా, సోషల్ మీడియాతోనే అధికారంలోకి వస్తామని కలలుగా అంటున్నట్టున్నాడు ఆయన. నువ్వు సోషల్ మీడియాతోనే అధికారంలో రావు, కానీ చిల్లర పనులు చేస్తే మాత్రం చెల్లపరిలో చిప్పకూడు తింటావని నేను చెప్తూ, మనందరం కలిసికట్టుగా కాకా స్ఫూర్తితో తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి చేద్దాం। रियासती वजीर पंचायत राज बहबूद कबाइल सीता अक्का ने महाराष्ट्र में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की हालिया तकरीर पर सख्त रद्द अमल जाहिर किया है, जिसमें मोदी ने तेलंगाना में किसानों के कर्जों की माफी न होने का इल्जाम आयद किया था। सीता अक्का ने कहा है कि मोदी की तकरीर मन घड़त है और उनके दौरे हुकूमत में किसानों को बेपनाह मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उन्होंने याद दिलाया कि 3 ज़री से कवानीन के खिलाफ एहतजाज के दौरान तकरीबन 700 किसानों की जानें चली गई। सीता अक्का ने मजीद कहा कि जिस शख्स ने काले कवानीन मुतारिफ कराए और किसानों को अजियत दी, उन्हें हमारी हुकूमत से सवाल करने का कोई हक नहीं है। उन्होंने मोदी पर इंतखाबी वादा पूरा न करने का भी इल्जाम आयद किया है। చాలా రోజులుగా మీరందరూ ఎదురు చూస్తున్నటువంటి కొలువులు అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్స్ రూపంలో మీకు అందరినీ ఈరోజు ప్రజాపాలకుడు మరి గౌరవనీయులు మన ముఖ్యమంత్రి శ్రీ రేవంత్ రెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో వారి చేతుల మీదుగా ఈరోజు మరి అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్స్ ఆర్డబ్ల్యూఎస్ అండ్ పిఆర్, అదేవిధంగా అగ్రికల్చర్ ఆఫీసర్స్, ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ టీచర్స్ అండ్ లైబ్రేరియన్స్ టోటల్గా మరి 1473 మంది ఈరోజు మరి అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్స్ తీసుకుంటున్న మీ అందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలను తెలియజేస్తూ, వేదిక మీద ఉన్నటువంటి పెద్దలందరూ కూడా, మా మంత్రివర్గ సోదరులు, ఇతర పెద్దలు, పత్రికా మీడియా సోదరులు, మన డిపార్ట్మెంట్ హెడ్స్ అందరికీ కూడా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు, ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. చాలా రోజులు నా దగ్గర కూడా మన వాళ్ళు వచ్చి ఎప్పుడు ఇస్తారని చెప్పడం జరిగింది. కానీ పండుగ ముందు అతిపెద్ద పండుగ, ఎక్కువ రోజులు మీ లైఫ్లో మీరు ఎంతో గొప్ప లక్ష్యాలతోటి మరి చదువుకొని ఈ పండుగ ముందు ఈ పెద్ద పండుగ జరుపుకోవడం లైఫ్ లాంగ్ గుర్తుండేటువంటి పండుగ. మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా నేను ఒకటే రిక్వెస్ట్ చేస్తా ఉన్నా, మరి ఎన్నో లక్ష్యాలతో మీరు చదువుకొని ఈ పొజిషన్లోకి వస్తున్నారు. ఎంతైతే చదువుకునేటప్పుడు నిబద్ధతతో, నిజాయితీతో, అంకిత భావంతో పని చేయాలని లక్ష్యాన్ని పెట్టుకుంటారో, ఆ లక్ష్యానికి మరి చేరువగానే మనం పనిచేస్తే లైఫ్ లాంగ్ ప్రజలకు గుర్తుండిపోతాం. మనం రిటైర్మెంట్ అయ్యేటప్పుడు వెనకాల చూసుకుంటే ఏం కనపడదు, మధ్యలో సాలరీస్ రావచ్చు, రకరకాలుగా ఏమైనా ఉండొచ్చు పోవచ్చు, కానీ అంతిమంగా మనం పనిచేసే ప్రాంతంలో మీదైన శైలిలో మీ యొక్క మార్పు ఉండే విధంగా మరి మనసు పెట్టి పనిచేయండి, కష్టపడి పనిచేయండి. ఈ ప్రజాపాలకునికి, ప్రజాపాలనకు మంచి పేరు తీసుకురండి. లైఫ్ లాంగ్ ప్రజలలో, గ్రామాలలో నిలబడే విధంగా మరి మీ యొక్క నాణ్యత ప్రమాణాలతో కూడినటువంటి
డ్యూటీస్ చేసి మంచి వర్క్స్ చేసి అవి చూసినప్పుడల్లా ఆ వర్క్ ఆ బిల్డింగ్ ఏదైనా కావచ్చు చూసినప్పుడు పలానా అధికారి ఉన్నప్పుడు మాకు ఈ పని చేసిండు అనేటువంటి గుండెల్లో గుర్తుండిపోయే విధంగా పని చేయండి. అది మాత్రమే మనల్ని స్వాస్థ్యంగా ప్రజలకు గుర్తించే విధంగా చేస్తుంది. ఏది కూడా ఉండదు స్వాస్థ్యం, కానీ మనం ప్రజలకు చేసిన పని మాత్రమే ఉంటుంది. కాబట్టి ఈరోజు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గారు ప్రజాపాలకుడిగా ఉంటూ మరి అనేక చిక్కుముడులన్నీ కూడా విడదీస్తూ ఎవరికి వాళ్లకు ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పిస్తూ పెండింగ్ లో ఉన్న వాటిని కూడా క్లియర్ చేస్తూ ఈ రోజు పండుగ ముందు కొలువుల జాతర అద్భుతంగా నిర్వహిస్తున్నందుకు వారు ఈ టైం ఇచ్చి మనకు ఈ యొక్క అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్స్ అన్ని కూడా మీకు అందిస్తున్నందుకు వారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ మీ అందరికీ बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने वजीर आला रेवंत रेड्डी से दरखास्त की है कि वो अपने और कांग्रेस कायदीन के मकानात को पहले मुनहदिम करें ताकि गरीब आवाम के घरों को बेघर होने से बचाया जा सके। उन्होंने कहा है कि वजीर आला रेवंत रेड्डी को गरीबों के घरों पर बुलडोजर चलाने और लोगों की जिंदगी को तबाह करने का अमल बंद करना होगा। केटीआर ने कहा कि अगर मेरा घर गिराने से आपको सुकून मिलेगा तो बराह करम ऐसा करें, लेकिन इसके बाद बेतहाशा इन्हदामी कार्रवाई को खत्म करें। उन्होंने मजीद कहा कि रेवंत रेड्डी को पहले अपने भाई तिरुपति रेड्डी के मकान को गिराना चाहिए। दिल्ली के वजीर आला आतिशी ने बस मार्शल के मामले पर बीजेपी को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए उसे गरीब मुखालिफ करार दिया है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बीजेपी और लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना की वजह से हजारों लोग बेरोजगार हो गए हैं। आतिशी ने कहा कि बस मार्शल गुज़िश्ता साल अक्टूबर में वीके सक्सेना की जानिब से अपनी खिदमत खत्म किए जाने के बाद अपनी बहाली के लिए एहतजाज कर रहे हैं। 6 अक्टूबर को दिल्ली में जनता की अदालत से खिताब करते हुए आतिशी ने कहा कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल हैं जो दिल्ली के गरीबों और आम लोगों के लिए काम करते हैं, जबकि दूसरी तरफ बीजेपी एक गरीब मुखालिफ पार्टी है जो गरीबों को परेशान करने का काम करती है। 10 साल पहले की दिल्ली कैसे होती थी? 10 साल पहले की दिल्ली में इस तपती हुई गर्मी में लंबे लंबे पावर कट लगा करते थे। 2015 में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनने से पहले 2014 तक की गर्मी में 8-8 घंटे के पावर कट दिल्ली में लगा करते थे। लंबे लंबे पावर कट लगने के बावजूद महंगे महंगे बिजली के बिल आया करते थे और एक सामान्य मिडिल क्लास का परिवार सोचता था कि बिजली का बिल देने के लिए घर का कोई और खर्चा काटना पड़ेगा, बिजली बिल देने के पैसे नहीं होते थे एक आम परिवार के पास। कच्ची कॉलोनियों में, झुग्गी झोपड़ियों में महिलाओं को घंटों तक पानी के टैंकर के इंतजार में खड़ा होना पड़ता था। हाथ में एक कनस्तर लेके पानी के टैंकर का इंतजार करती थी। पानी की पाइपलाइन नहीं होती थी कच्ची कॉलोनियों में और झुग्गी झोपड़ियों में। सरकारी स्कूलों का जो हाल होता था, जहां आम परिवारों के, गरीब परिवारों के बच्चे जाते थे, स्कूल के अंदर घुसिए तो सबसे पहले टॉयलेट की बदबू आती थी। ऐसे होते थे दिल्ली के सरकारी स्कूल। ना बैठने के लिए टेबल कुर्सी होती थी, ना ब्लैक बोर्ड होता था, ना पंखा होता था, ना पीने को पानी होता था, ना पढ़ाने के लिए टीचर होते थे। ये था 10 साल पहले दिल्ली के सरकारी स्कूलों का हाल। परिवार में कोई एक व्यक्ति बीमार हो जाए तो सरकारी अस्पताल इतने बदहाल होते थे कि कोई अपने परिवार के सदस्य को लेके जाना नहीं चाहता था। अपने जेवर गिरवी रख के, अपना घर गिरवी रख के महंगे महंगे प्राइवेट अस्पतालों में भी गरीब लोग अपने बच्चों का इलाज कराते थे। जो कच्ची कॉलोनियों में रहते थे, कच्ची कॉलोनियां नर्क से कम नहीं होती थी। ना सड़क थी, ना पानी था, ना सीवर था, ना नाली थी। दिल्ली के लोग परेशान थे। वो नेताओं से परेशान थे क्योंकि वो देखते थे कि नेता आते हैं, नेता जाते हैं, पार्टियां आती हैं, पार्टियां जाती हैं, लेकिन एक आम आदमी की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आता। कोई, उनकी जिंदगी संघर्ष से भरी रहती है। लेकिन 2015 में दिल्ली में एक चमत्कार हो गया। 2015 में दिल्ली वालों ने अपने बेटे, अपने भाई, आम आदमी की आवाज उठाने वाले अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया। प्रचंड बहुमत से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया। ये दिल्ली वालों ने 2015 में चमत्कार कर दिया। अरविंद केजरीवाल एक वो व्यक्ति थे जो एक आम आदमी का दर्द समझते थे, एक आम महिला की परेशानी समझते थे, एक आम परिवार की समस्या समझते थे।
और अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति थे जिन्होंने एक एक करके दिल्ली वालों की समस्याओं का समाधान करना शुरू किया। उन्होंने 10 सालों में दिल्ली में रहने वाले लोगों की जिंदगी बदल दी, वो काम करके दिखा दिए जो बाकी पार्टियां, बाकी सरकारें 75 साल में नहीं कर पाई थी। दिल्ली अब वो इकलौता राज्य है जहां पे तपती हुई गर्मी में भी 24 घंटे बिजली आती है और 24 घंटे बिजली आने के बाद भी बिजली का बिल 0 आता है। ये है अरविंद केजरीवाल की दिल्ली, ये है अरविंद केजरीवाल का काम। दिल्ली वो इकलौता राज्य है जहां पे सरकारी स्कूलों ने प्राइवेट स्कूलों को पीछे छोड़ दिया है, जहां माता पिता अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल कर सरकारी स्कूलों में एडमिशन करवाते हैं। ये है अरविंद केजरीवाल की दिल्ली, ये है अरविंद केजरीवाल जी की सरकार। दिल्ली एक इकलौता राज्य है जहां पे सरकारी अस्पताल में, जहां पे मोहल्ला क्लिनिक में चाहे 500 रुपए का इलाज कराना हो, चाहे 50 लाख रुपए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किसानों और मजदूरों की महापंचायत का इनेकाद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में किसान एकू गार्डन पहुंचे। इस महापंचायत का मकसद किसानों की मुतालबात को हुकूमत तक पहुंचाना था। किसान लीडर राकेश टिकैत ने हरियाणा असेंबली इंतखाबात के बाद जारी एग्जिट पोल के हवाले से बीजेपी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल के मुताबिक हरियाणा में मौजूदा हुकूमत को शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है और कांग्रेस की हुकूमत बनती हुई नजर आ रही है। राकेश टिकैत ने मजीद कहा कि बीजेपी की हालत खराब है और अक्सरियत से दूर दिखाई दे रही है। ताहम बीजेपी ने एग्जिट पोल के नताइज को गलत साबित करने का दावा किया है और कहा है कि रियासत में एक बार फिर से बीजेपी हुकूमत बनाएगी। अरे बारी में कहा ये पुलिस ने सारे रोक दिए रास्तों में, बारी में कहाँ इकट्ठे हुए, रास्ते में रोके जगह जगह। जो बसें आनी थी उनके घर पे जाकर बैठ गए, बसों को ड्राइवर को लेकर उतार कर थाने में, तो कैसे आएंगे। आज वार्ता है, बातचीत करेंगे इनसे। हो लिया चुनाव हरियाणा का, भाई उन्हें लाठी बजाई तो चुनाव चलेगा। जी सरकार जो लाठी बजाओगी वो सरकार जाएगी। बदला है किसान आंदोलन का, किसान ने बदला ले लिया। भाई किसान लाठी थोड़ा चलाएगा फोर्स पे, वो बदला चुनाव मिलेगा, उसने ले लिया। रहने का हार की सरकार वहां की, कांग्रेस की वहां सरकार बनेगी। हरियाणा के साबिक वजीर आला और कांग्रेस के सीनियर लीडर भूपिंदर हुड्डा ने इतवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरियाणा इंतखाबात से मुतालिक एग्जिट पोल के रुझानात पर अपना रद्द-ए-अमल दिया है। उन्होंने हरियाणा के लोगों का पुरअमन तरीके से वोट डालने पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा, एग्जिट पोल के रुझानात कल आए थे, लेकिन मैंने पहले ही कहा था कि कांग्रेस भारी अक्सरियत के साथ रियासत में हुकूमत बनाने जा रही है। भूपिंदर हुड्डा ने मजीद कहा कि रियासत के अवाम ने 2004 से 2014 तक के दरमियान कांग्रेस की हुकूमत देखी और इसके बाद 2014 से 2024 तक बीजेपी और बीजेपी की हुकूमत भी देखी। उन्होंने कहा कि 2014 में रियासत में फिक्स आमदनी, नज्म नस्क और खिलाड़ियों को नौकरियां देने के मामले में पहले नंबर पर थी, जबकि बीजेपी के दौर में बेरोजगारी और महंगाई में हम नंबर 1 बन गए हैं और रियासत की अमन अमान की सूरत हाल मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है। बड़े शांतिपूर्ण जो है ये चुनाव हुआ है, कोई ऐसी दुर्घटना नहीं घटी है, तो उसके लिए मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ और अच्छे तरीके से चुनाव हुआ है। और एग्जिट पोल है ये तो कल आए हैं, मैं तो कितने दिनों से कह रहा हूँ भाई लोगों ने मन बना लिया है, कांग्रेस की सरकार बनाएंगे, भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। भाजपा के नेता तो ये कह रहे कि एग्जिट पोल कुछ नहीं है, ये खाली मीडिया का ढोलना। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं भी ये कह रहा हूँ एग्जिट पोल तो कल आया, हम तो पहले से कह रहा हूँ कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। सर क्या वजह रही जो आप इस तरह से कह रहे हैं कि सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है, मतदान किया लोगों ने, क्या वजह आप देखते हैं कि कांग्रेस को मैंडेट देने जा रही है? क्योंकि 2005 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार रही, उसकी उपलब्धि देखी लोगों ने, और ये 14 से 24 तक जो ये मौजूदा सरकार है बीजेपी जेजेपी की, इसकी विफलताएं देखी। जो प्रदेश 2014 में प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में, खेल खिलाड़ियों में नंबर 1 का प्रदेश था पूरे देश में, वो आज नंबर 1 हो गया। बेरोजगारी में, महंगाई में, कानून व्यवस्था बिल्कुल चरम आ गई। ऐसा प्रतीत तो सरकार है ही नहीं। बेखौफी से बदमाश जो है कभी फिरौती मांगते हैं, कभी लूटते हैं, कभी मतलब मर्डर हो रहे हैं, बलात्कार के रेट बहुत बढ़ रहे हैं। और खेल खिलाड़ियों को तो पता ही है, अपने जो पहलवान बेटियां, कोई भी खिलाड़ी हो जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है, उनको भी न्याय नहीं मिल रहा।
नायब सैनी जी कह रहे हैं कि तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी। हैं? नायब सैनी जी कह रहे हैं कि तीसरी बार भी बीजेपी की वो क्या कहेगा वो तो मैंने कहा है ना, उनकी तो एक झूठ की दुकान है, सुबह झूठ बेचना शुरू करते हैं। बीजेपी के जो डिप्टी सीएम थे हैं? चौटाला, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ये कह रहे थे कि जो सत्ता बनेगी तो चाबी हमारे पास रहेगी। अब लग जाएगा 8 को पता, चाबी खूगी उनकी कांग्रेस मांगे हिसाब का कितना असर है। नहीं, पूरे कांग्रेस पूरे 10 साल सक्रिय रही कार्यक्रम में। जो विपक्ष में हमारे को लोगों ने मैंडेट दिया था, हमने पूरी जिम्मेवारी से अपना निभाया और पूरी जन समस्या उठाई। मुख्यमंत्री पद की दौड़ भी चलेगी कांग्रेस पार्टी में, आपका भी दावा है, शैलजा भी दावा कर रही है, रणदीप सिंह सुरजेवाला भी दावा। तू भी दावा कर ले, कोई नाट रहा है, पहले तू भी। प्रजातंत्र है, दावेदार होना अच्छी बात है, ये क्या है, तो पद्धति है कांग्रेस की। विधायकों से पूछेंगे, पार्टी हाईकमान फैसला कर देगी। सर, जो एग्जिट पोल आया है उसमें नेशनल पार्टियों को ज्यादा सीटें दिखाएंगे, जो रीजनल पार्टियां थी उनको सीटें कम दिखाई नहीं रही है, जैसे जेजेपी है ही नहीं। वो तो पहले कहा था वोट काटो, वोट नहीं देंगे लोग। ये पार्टियां बीजेपी की बी टीम थी, उनका मकसद वोट काटने हैं। राम रहीम जो जिस तरह जेल से बाहर गया उसका असर हुआ सर? ऐसा है, जो जुडिशियल मैटर होता है उसमें मैं नहीं बोलता, सब जुडिस मैटर है। कितनी सीटें की उम्मीद है? हरिबो दीपेंद्र कह रहे थे कि 60 से ज्यादा सीटें हैं। वो कुछ कह रहे, मैं जो कह रहा हूँ वो मेरे से पूछा, मेरा जवाब दे दिया मैंने। अच्छा, आप अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो कैबिनेट में किन को खासतौर पर? हाइपोथेटिकल सवालों को मैं जवाब देता नहीं कभी। सर, एक अनिल विज साहब ये कह रहे हैं, अनिल विज साहब ये कह रहे हैं, कौन? अनिल विज जी, वो ये कह रहे हैं कि आपकी विधानसभा में 5% कम वोट हुआ, उनकी विधानसभा में 3% ज्यादा वोट हुआ। ये दर्शाता है कि भाजपा को ज्यादा प्यार मिल रहा है। जब तो हारेंगे वो, जब तो उनका सीट खतरे में है। आपने 2 डिप्टी सीएम की बात रखी थी, इस बार सरकार में कितने डिप्टी सीएम होंगे, क्या कुछ बना है अभी प्लान? हाइपोथेटिकल सवाल का जवाब नहीं देता मैं, कोई बार सर, कहेंगे। एक सवाल ये है कि कल से एग्जिट पोल जब से आए हैं, अब सुबह 12 बज चुके हैं, तो हाईकमान से कोई बातचीत हुई आपकी? कोई खुश है सारी बात आपको बतानी जरूरी है क्या? सर, जिस तरह से पिछली बार जो मतदान किसान यूनियन के एक वफ्द ने इतवार को समाजवादी पार्टी के कौमी सदर और यूपी के साबिक वजीर आला अखिलेश यादव से मुलाकात की। मुलाकात के बाद किसान लीडरों ने अखिलेश यादव को अपना लीडर करार देते हुए कहा कि वो हमेशा से किसानों की आवाज उठाते रहे हैं। किसान लीडरों ने कहा कि समाजवादी पार्टी के दौरे हुकूमत में किसानों के हक में तमाम तरक्याती काम किए गए, जबकि बीजेपी के दौरे हुकूमत में किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने मजीद कहा कि गरीब और कर्ज के बोझ तले दबे किसानों ने खुदकुशी के रास्ते इख्तियार किए हैं। वफ्द ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी हुकूमत ने अब तक किसानों के फलाह बहबूद के लिए कोई ठोस इक़दामात नहीं किए। गजा की जंग 1 साल मुकम्मल होने पर दुनिया भर के मुताद्दद शहरियों में मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आए और इजराइल की जानिब से जारी हमले बंद करने का मुतालबा किया। खबर रसा इदारे रॉयटर्स के मुताबिक तकरीबन 40,000 मुजाहिरीन ने वस्ते लंदन में फिलिस्तीन के हक में रैली निकाली, जबकि हजारों की तादाद में शहरियों ने पेरिस, रोम, मेलिना, कैपटाउन और न्यूयॉर्क में एहतजाजी मुजाहरे किए। व्हाइट हाउस के करीब भी मुजाहिरीन जमा हुए और अमेरिका के अपने इत्तेहादी मुल्क इजराइल की जानिब से जारी फौजी कार्रवाइयों की हिमायत की मुखालिफत में नारेबाजी की। सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले मुल्क इंडोनेशिया के दारुल हुकूमत जकार्ता में कम अज कम 1000 शहरी फिलिस्तीन के हक में अमरीकी सफारत खाने के करीब इकट्ठा हुए और इजराइल को हथियारों की तरसील बंद करने का मुतालबा किया। I stand with Palestine, and I feel like this march will maybe represent more of why everyone needs to stand with Palestine.
all the leaders, listen to your people. And we want peace in the Middle East and in the world, but listen to your people. Your people are out here in the streets every month, and you're just not listening. You're deaf, dumb and blind. Listen to them. Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! इजराइल के शहर बेर शिवा में फायरिंग के नतीजे में कम से कम एक इजरायली हलाक और 10 दीगर जख्मी हो गए। यह वाक़या इतवार को जनूबी इजराइल में पेश आया जब गजा में जारी जंग का 1 साल मुकम्मल हुआ। इजराइली तिब्बी अमले के मुताबिक 25 साला खातून की लाश इस इलाके से निकाल ली गई है, जबकि जख्मियों को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। मैगन डेविड एड्रूम ने वाक़ये की तस्दीक की है। पुलिस ने इसे एक हमला करार देते हुए कहा है कि इजराइल दुश्मनों की जानिब से की गई दहशतगर्दी है। ख्याल है कि इजराइल के हुकाम के मुताबिक वह इस वक्त 7 मुहाज़र पर जंग लड़ रही है, जिसमें गजा, लिबनान शामिल है, जहाँ वो अब तक हज़ारों शहरियों की हलाकत का सबब बन चुका है। आखिर में हेडलाइंस फिर। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का बयान, बीआरएस के सोशल मीडिया कारकुनों को जेल जाने का खतरा। रियासती वजीर सीता अक्का का मोदी की तकरीर पर शदीद रद्द अमल, मंद घरट इल्जामात और किसानों की मुश्किलात। दिल्ली के वजीर आला आतिशी का बीजेपी पर गरीब मुखालिफ होने का इल्जाम। लखनऊ में किसान और मजदूरों की महापंचायत, राकेश टिकैत ने बीजेपी को निशाना बनाया। भूपिंदर हुड्डा का एग्जिट पोल पर रद्द अमल, कांग्रेस भारी अक्सरियत से हुकूमत बनाने जा रही है। बेरशिवा में फायरिंग, एक इजरायली हलाक, 10 जख्मी। 1 TV उर्दू खबरनामा यहीं पर इख्तिताम पसीद हुआ। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी कल मुलाकात। अल्लाह हाफिज।